Okay, hi, good morning. So we have started our third unit, and third unit in Python is all about the data structure. Means how we can form that data in our system and how we can achieve those information and make meaningful sentences. Because unlike C and C++, Python has different data structure. Like हम लोग ने लिस्ट देखा था, लिस्ट के बारे में सारे ऑपरेशंस हम लोग ने देखे थे. Now the next data structure is all about the tuples. Okay, so Python tuple, I guess, I don't remember the exact point, but I guess we finished the ये जो अपना एक क्या नाम है ऐसा, we finish the access value in tuples relating values ऐसा और अपडेटिंग समथिंग. ये जो फर्स्ट टॉपिक है हम लोग ने देखा था. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट पॉइंट, बट आई एम बिट श्योर दैट कि हम लोग ने ये देखा था. अगर नहीं भी देखा है सो एक ब्रीफली इसका ओवरव्यू देख लेते हैं. एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन द बेसिक टपल ऑपरेशंस लाइक लिस्ट के जैसे देखे थे हम लोग ने सेम. एंड बिल्ट इन टपल फंक्शंस जैसे हम लोग ने लिस्ट के फंक्शंस देखे थे. ठीक है. सो as I said in the last lecture, we have seen we are going to see the same features like list, tuple, set और dictionaries. ये चार डेटा स्ट्रक्चर्स है पाइथन में. सो उसमें डिफाइन कैसे करना है, वो अपडेट कैसे करने, वैल्यू डिलीट कैसे करनी है, देन द बेसिक ऑपरेशंस रिलेटिंग with respective to that data structure, and the last is functions. Okay, so ऐसे हम लोग ये थर्ड चैप्टर है, जो थर्ड यूनिट है वो टोटली यहाँ पे देखो उसका नाम ही है द डेटा स्ट्रक्चर. दिख रहा है, डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द actual concept of data structure in Python. So tuple is a collection of objects which ordered and immutable. Okay, ये I repeat this thing a lot times. मतलब चैप्टर वन में भी हम लोग ने इसके बारे में बात की थी. So there is only one difference between list and tuple is list are mutable and tuples are immutable. Now what is mutable and immutable? Mutable means you can change the values at any time, at the execution, at the current situation, या फिर whenever the program is going on. But in the tuple scenario you cannot change the value. If you declare that value, you cannot change at the time of execution. Immutable मतलब आपण त्याला चेंज करू शकत नाही. ठीक आहे. सो and there is one more difference between list and tuple. We can declare the items in list in square brackets. Okay, and unlike list in Python, here we can declare the items in tuples in राउंड ब्रैसेस, जो पैरेंथेसिस है अपने. ओके, राउंड ब्रैसेस में हम लोग वो डिफाइन करने वाले हैं. एंड ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि इफ आई वांट टू डिक्लेयर वन स्ट्रिंग, सो आई डिनोट दैट स्ट्रिंग इन सिंगल कोट या फिर डबल कोट, और दोज ऑल एलिमेंट्स आर separated by using comma. Okay, so tuple is the thing. And suppose if I want to access the first element, the empty tuple is written as two parentheses containing nothing. Okay, so suppose I am writing the I'm declaring one tuple with no default values, so that is the empty value, जो उसमें कुछ भी, या फिर empty tuple उसे बोलेंगे, एक भी वैल्यू यहाँ पे पास नहीं है, जो डिफॉल्ट टपल रहेगा वो. ओके, ओके, आई गेस ये हम लोग का हो गया था. ये देखो, ये लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कि अगर सिंगल आइटम है तो भी हम लोग को कॉमा करके वो लिखना ही है. ठीक है. सो अपडेटिंग टपल, आई गेस डिलीटिंग टपल वैल्यू. ठीक है, रिपीट करते एक बार क्योंकि याद नहीं मुझे. सो एक्सेसिंग वैल्यूज इन टपल्स. सो if you want to access the tuple value, so you can simply pass the index value. Okay, and the array indexing जैसा हो रहा है, similarly here we can perform the tuple index as well. So indexing starts from 0 to n-1. You guys knew the thing of array indexing. Indexing मतलब array indexing मतलब whichever indexing 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक वो खत्म होने वाला है. ठीक है. सो जीरो एलिमेंट पे क्या है, फिजिक्स है यहाँ पे. सो फिजिक्स यहाँ पे आउटपुट में मुझे दिख रहा है. उसके बाद है द सेकेंड जो लाइन है मेरी for accessing the values in tuples, that is all about the range. It declare the range, and in between the range all the elements are fetched and displayed in our output section. So यहाँ पे देखो 1:5 लिखा है.
सो 1:5 मतलब 1 इंडेक्स से चालू होने वाला है और टोटल देखो 0 टपल 2 को ये मैंने कॉल किया, कंफ्यूजन मत करना, ये टपल 1 मैंने कॉल किया था जो फिजिक्स वाला सीन था, एंड दैट इज माई टपल 2 मतलब TUP2 जो लिखा है हम लोग ने। सो TUP2 यहाँ पे देखो 0 पे 1 है, ओके ये 0 1 2 3 4 एंड 5। सो इट विल स्टार्ट द इंडेक्सिंग फ्रॉम 1, ये जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है 1, बट द रेंज इज 5 मतलब 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 ओके 6 तक, बट इट कैन निगलेक्ट द 6। वो 5 क्या है, वो 5 लास्ट पॉइंट है, हाँ इट विल नॉट कंटेन द लास्ट पॉइंट, जो लास्ट इंडेक्सिंग है वो अपना जो डिक्लेयर किया हुआ दैट वैल्यू इज नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन अवर टपल 2। सो बेसिकली this statement to simply print the values from 2 3 4 5. Got the idea? Clear with this? Okay, now go ahead with the next concept, updating tuples. Now I want to add something, और डिलीट समथिंग। ठीक है, पहले हम लोग अपडेट के बारे में देखते हैं कि हम लोग को चेंज करना है या फिर कुछ ऐड मतलब जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसे मॉडिफाई करनी। सो इन दैट केस यहाँ पे देखो क्या किया है, टपल 1 दो वैल्यूज मैंने एंटर की है 12 और 34.56, एंड टपल 2 में ABC और XYZ ये दो वैल्यू मैंने पास की है। अब यहाँ पे देखो कमेंट दिया है मैंने, फॉलोइंग एक्शन इज नॉट वैलिड फॉर टपल्स, टपल 1 of 0 is equal to 100 means if you want to update the tuple using means accessing the index value and you simply assign the new value to tuple, so this is not the valid वे टू एंटर टू अपडेट द वैल्यू इन टपल। ऐसे हम लोग ऐड नहीं कर सकते, टपल 1 ऑफ 0 मतलब 0th इंडेक्स पे क्या है 12 है, सो ये बोल रहा है कि 12 के बजाय 100 पुट कर दो, सो ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू टपल एज फॉलोज। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टपल 3 किया टू अपडेट दैट वैल्यू, और टपल 3 में क्या किया मैंने, टपल 1 प्लस टपल 2। सो बेसिकली वी कॉन्केटिनेट टू टपल्स एंड प्रिंट द टपल 3 जो जिसका रिजल्ट ये दोनों का कॉन्केटिनेशन है, मतलब टपल 1 में 12 है 34.56, उसके बाद ABC और XYZ जो रिजल्ट में हम लोग को मिल गया टपल 3 में। क्लियर? ओके, नाउ डिलीटिंग द टपल एलिमेंट्स। सो डिलीट करना तो सिंपली क्या करना, लिखो ये टपल हम लोग ने पहले प्रिंट किया फिजिक्स केमिस्ट्री 1997 जगह आहे 2000, ओके प्रिंट केलं टपल सिंपली, and using del operator for deletion we can use the operator del keyword या फिर del statements to delete that entire tuple। so delete करने के बाद वो यहाँ पे देखो पहले दिख रहा था पूरा, और डिलीट करने के बाद फिर एरर आ रहा है, आफ्टर डिलीटिंग अप तो एरर आ रहा है क्योंकि वो अवेलेबल प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज बेसिक टपल ऑपरेशन। जैसे कि हम लोग ने लिस्ट के ऑपरेशंस देखे थे बेसिक, सिमिलरली हियर आर द बेसिक टपल ऑपरेशंस। सो टपल रिस्पॉन्ड टू द प्लस एंड स्टार ऑपरेटर, प्लस से क्या होगा एडिशन होगा, स्टार से क्या होगा मल्टीप्लीकेशन होगा, मच लाइक स्ट्रिंग्स जो स्ट्रिंग के ऑपरेशन से सिमिलर टू दैट कॉन्केटिनेशन एंड रिपीटेशन। ओके, सो एग्जीक्यूट दैट द रिजल्ट इज न्यू टपल नॉट अ स्ट्रिंग, और जो कॉन्केटिनेशन होने वाला है सो उससे एक नया स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगा, उससे मतलब आउटपुट क्या आने वाला है, ऑब्वियसली मैं टपल के साथ ऑपरेशंस कर रहा हूँ, सो इट विल प्रोड्यूस द न्यू टपल। ओके, जैसे कि टपल 3 ऊपर हम लोग ने देखा था, सेम लाइक दैट। सी हियर पाइथन एक्सप्रेशन लेंथ है, हाँ लेंथ 1 2 3, हाँ ये लेंथ किसका फंक्शन है, स्ट्रिंग का, विच वी कैन यूज इन आवर टपल सिनेरियो। सो रिजल्ट क्या आने वाला है 3। ओके, उसके बाद है 1 2 3 प्लस 4 5 6। सो 1 2 3 और 4 5 6 दोनों कॉन्केटिनेट होने वाले हैं, हाँ दोनों का एडिशन नहीं होने वाला, दोनों कॉन्केटिनेशन होने वाले। देखो उसका डिस्क्रिप्शन पे दिया, लेंथ है कॉन्केटिनेशन है। ओके, उसके बाद है हाई मैंने प्रिंट किया है 4 बार, सो हाई 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 ऐसे 4 टाइम आ रहा है, सो ये क्या है रिपीटेशन है। देन 3 इन 1 2 3 ये मैं चेक कर रहा हूँ, मेंबरशिप चेक कर रहा हूँ, मेंबरशिप वाला जो सिनेरियो था, जैसे कि ये क्या बोल रहा है, ये जो पर्टिकुलर टपल है 1 2 3 नाम का, उसमें 3 प्रेजेंट है कि नहीं, अगर है सो इट विल प्रिंट द बुलियन वैल्यू ट्रू। इफ सपोज यहाँ पे मैं 4 लिखता 5 लिखता 1 2 3 छोड़ के कोई भी एक नंबर लिखता, सो इट विल प्रिंट एज अ फॉल्स। ठीक है, द नेक्स्ट इज इटरेशन और फॉर लूप वाला, फॉर एक्स इन 1 2 3 प्रिंट एक्स, सो वो क्या होगा 1 2 3 की बार प्रिंट होने वाला, दैट इज ऑल अबाउट अवर
iteration, looping statement. Okay. Uh, then the next is indexing, slicing, and matrices. So because tuples are sequences, indexing and slicing work the same way for tuples as they do for strings. Okay. यहाँ पे देखो L, ये तीन मैंने टप्पल वैल्यूज पास की है, स्पैम, स्पैम और स्पैम, मतलब केसेस में फर्क है. सो एल ऑफ टू में क्या आने वाला है, स्पैम, क्योंकि ये 0 1 2. ओके, ऑफसेट स्टार्ट एट 0, ये तो आप लोग को मालूम है, ये रिजल्ट जनरेट आउटपुट में आने वाला है. एल ऑफ -2 पे क्या आने वाला है, निगेटिव, सो काउंट फ्रॉम राइट. सो -2 में क्या होने होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, -2 है, सो 1 और 2. अभी यहाँ से जब हम लोग -2 मतलब निगेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सो एट दैट टाइम the indexing is not start from the 0. Okay, it will directly jump to the 1. So यहाँ से वो 1 कंसिडर करेगा और ये 2. So ये वैल्यू मुझे मिलने वाली है स्पैम पे. Either you can access this value using L of 1 as well. L of 1 भी स्पैम ही है, मतलब ये कैपिटल S और PAM वाला. उसके बाद L of 1 कोलन स्लाइसिंग फीचर्स सेक्शन. सो 1 कोलन से क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो 1 में क्या है, ये स्पैम है. ओके, और कोलन दिया, सो वो सेक्शन में डिवाइड हो रहा है और वो ये दो रिजल्ट मुझे जनरेट हो रहे हैं. ठीक है. ओके, देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बिल्ट इन टपल फंक्शंस. सो क्विकली वो देख लेते क्या है. सेम लाइक लिस्ट ही रहने वाले ये टपल के फंक्शंस भी. ठीक है. सो CMP फर्स्ट फंक्शन था अपना CMP. सो CMP इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू एलिमेंट्स या फिर टू टपल्स. ओके, सो CMP टपल 1 टपल 2. सो वो कंपेयर करने वाले टपल 2 और टपल 1 और टपल 2 के वैल्यूज को. यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हम लोग ने, टपल 2 टपल 1 आई एम पासिंग द वैल्यू 1 2 3 XYZ और यहाँ पे 4 5 6 ABC. ओके, प्रिंट CMP टपल 1 और टपल 2. सेम लाइक जैसे हम लोग ने लिस्ट में किया था, सेम ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं. यहाँ पे देखो ये जो वैल्यूज है वो लेसर है कंपेयर टू दिस. ओके, XYZ बाद में आता है, ABC पहले आता है, 1 2 3 स्मॉलर, 4 5 6 इज लार्जर. ओके, सो दैट्स वाई whenever we print this CMP टपल, मतलब ये 1 और 2 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, सो -1 वैल्यू जनरेट कर रही है. क्यों? क्योंकि ये लेसर है ये टपल 2 से, टपल 1 लेसर है टपल 2 से. अभी नेक्स्ट लाइन पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ टपल 2 को टपल 1 से. सो ये ग्रेटर है कंपेयर टू टपल 1, सो माई आउटपुट विल बी 1. ओके, उसके बाद टपल 3 में मैंने क्या किया, टपल 2 प्लस 7 8 6, मतलब टपल 2 में 7 8 6 ऐड की और एक तीसरा मैंने टपल बनाया टपल 3 नाम का. ठीक है, मतलब ये जो है उसमें एक 7 8 6 वैल्यू ऐड होने वाली है. ओके, और प्रिंट CMP में क्या आएगा फिर, टपल सॉरी प्रिंट में मैंने क्या किया, टपल 2 और 3. सो ऑब्वियसली 3 बड़ा है 2 से, सो -1 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. क्लियर? ओके, सो सी हियर द नेक्स्ट फंक्शन इज लेंथ टपल. हाँ, लेंथ में फाइंड आउट कर रहा हूँ एलियन टपल. सो सिंपल है लेंथ. यहाँ पे देखो टपल 1 टपल 2 दो टपल बनाए मैंने और दोनों की लेंथ में प्रिंट कर रहा हूँ. सो इसकी कितनी है, 1 2 3 और इसकी 1 2. यहाँ पे देखो 3 और 2. क्लियर? कुछ भी नहीं है, जैसे हम लोग ने इसमें किया था, लिस्ट में सेम ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं. यहाँ पे देखो मैक्स. हाँ, सो इट विल, यहाँ पे देखो टपल 1 में ये है, टपल 2 में ये है. सो टपल 1 में मैक्स वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे देखो लेंथ वो फाइंड आउट करेगा और मैक्सिमम लेंथ किसकी है, ये झारा की. सो वो प्रिंट हो गया और यहाँ पे सारे नंबर ही है. सो इसमें जो हाईएस्ट नंबर है वो प्रिंट होने वाला है. ठीक है, मिनिमम में भी सेम ही रहेगा, मिनिमम में नो डिफरेंस. जिसकी लेंथ सबसे कम है, यहाँ पे कौन सी कम है, ABC सॉरी 1 2 3 कम है, क्योंकि ये सारे स्ट्रिंग्स है. सो स्ट्रिंग के कंपेयर में ये बहुत ही छोटा है नंबर. सो वो नंबर प्रिंट हो गया और यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 200. ओके, एंड द लास्ट इज टपल सीक्वेंस. इसे हम लोग ने लिस्ट में भी देखा था सीक्वेंस. सो सीक्वेंस क्या करता है, पाइथन टपल मेथड कन्वर्ट्स अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इनटू टपल. ओके, सो हाँ, अच्छा अच्छा, जो हम लोग ने लिस्ट में किया था, मतलब लिस्ट को अगर मुझे टपल में कन्वर्ट करना है, सो उसके लिए मैं टपल लिस्ट, ये जो हम लोग ने यही सेम फंक्शन हम लोग ने लिस्ट में भी देखा था. सो वो बेसिकली क्या है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहे टपल वैल्यूज, सो वो राउंड ब्रैकेट में आ गए, मतलब ये लिस्ट टपल में कन्वर्ट हो गई. क्लियर? सो वी आर डन विद द पाइथन टपल. अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेट्स चालू करेंगे, सेट्स क्या होते हैं वो देखेंगे और उसके बाद डिक्शनरीज. सो चैप्टर 3 पर खत्म हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू.